नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी मात्राओं के बारे में जानेंगे। हेलो किड्स, टुडे वी विल लर्न हिंदी matras. हिंदी matras are also known as vowel signs. हिंदी मात्राओं को हम vowel sign भी कहते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने जाना कि हिंदी वर्णमाला के दो भाग होते हैं। एक है स्वर, दैट इज वॉवल, और दूसरा है व्यंजन, दैट इज कॉन्सोनेंट। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ हिंदी अल्फाबेट, वन इज वॉवल एंड सेकेंड इज कॉन्सोनेंट। तो हमने जाना कि स्वर 11 प्रकार के होते हैं। देयर आर 11 स्वर इन हिंदी and those are a, do you remember these? A, e, u, ri, ai, o, au, ang, aha. So इन 11 स्वरों की मात्राएं भी होती हैं। इनकी ध्वनियों को हम मात्राओं के रूप में लिखते हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। Yes, Hindi vowels have some signs. Their sounds we write their sounds as signs, and we will learn about those vowel signs today. So, our first swar is A. A do not have any matra. Can you see I have written blank here? A do not have any matra. A की मात्रा वन स्टिक, अ की मात्रा खाली नथिंग, आ की मात्रा वन स्टिक, ई की मात्रा वन स्टिक गोइंग अप एंड टर्निंग टुवर्ड्स आवर राइट हैंड। ई की मात्रा वंस अगेन स्पीक विद मी, वन स्टिक गोइंग अप एंड टर्निंग टुवर्ड्स आवर राइट हैंड। ई की मात्रा again one stick and turning towards our left hand. Then comes U. U की मात्रा has one tail. This tail comes in the foot of the consonant व्यंजन U. This U की मात्रा also has one tail that is turning towards our right hand. Ri. Ri की मात्रा यानी vowel sign is like English alphabet, that is C. It is like C. Its vowel sign is C. Then comes A. A vowel sign is one ponytail up. A. A vowel sign is two ponytails up, up the line. O. O vowel sign is one stick and one ponytail up. The ponytail is joining the stick from above. O. O also has one stick, but it has two ponytails joining upside. So these are our 11 swar. Can you see? A, I, U, ri, a, o, o. So these are 11 swar and its vowel signs are these. A की मात्रा खाली, आ की मात्रा one stick, ई की मात्रा one stick turning towards our right hand, ई की मात्रा one stick turning towards our left hand, ऊ की मात्रा will come to the foot. It is turning towards our left hand. U की मात्रा also will come to the foot and it will turn towards our right hand. Ri की मात्रा is one C. It is like C. A की मात्रा has one ponytail. A की मात्रा has two ponytail. O की मात्रा has one stick with one ponytail. O की मात्रा has one stick with
two ponytail. Remember these things. Now next is A. A matra is, it is like one ponytail that will join the consonant from the upper side. It is like one ponytail and the words are yes, very sweet banana it is. Spelling are, how we pronounce it, what do we call it in Hindi? K. K ke upar, now can you see the matra? A matra joining K from the upper side. K, A, K. L, A, La. K, La, Kela. Banana. Sh, A, She. Sh plus A, She, R, Sher. M, A, Me. M, A, Me. L, A, La. Mela. तो बच्चों अब हमारा अगला स्वर है ए। ए एक लंबा साउंड है, इसकी ध्वनि लंबी है और इसका चिन्ह है टू पॉनिटेल। हाँ जी, ये भी इस व्यंजन के ऊपर से जुड़ता है और इसका चिन्ह है, इसका वॉवल साइन है टू पॉनिटेल्स। और इसके शब्द हैं, द वर्ड्स आर, लुक हियर, थ, इट इज थ। थ के ऊपर कैन यू सी दिस मात्रा ऑफ ए? थ, ए। स्पीक विथ मी, थ, ए, थे, ल, आ, ला, थैला, थैला, बैग। Next picture is, this is the picture of feet. So we call it P, P, A, P, A, pa, R, pa, R, pair. We call feet as pair. Next is the picture of eyes, beautiful eyes. So speak with me, N, A, na, N, A, na, N, nan. Our next swar is O. O, and this is its vowel sign. यह इसकी मात्रा है. It has one stick. Can you see this? One stick and one ponytail. Yes, one stick with one ponytail. This is the matra of O. And the words are, first picture is of horse. What do we call horse in Hindi? Look here, gh. It is gh. Gh के साथ में O की मात्रा. One stick with one ponytail going up. Yes. So this will become gh o, gho. Gh o, gho. A, ra. Gho, ra. Ghoda. Next picture is of a beautiful peacock. We call it mo, mo, r, more. Yes, this funny joker. Jo, jo, r, joker.
Now our next swar is O. O is our next swar and its vowel sign is, yes, it is similar to O. O also has one stick with two ponytails. O की तरह ही O में भी one stick, but this time इस बार इसमें two ponytail है. This time this has two ponytail. O has two ponytails. And the words are, yes, plant. It is a picture of a plant. P-O. It is a long sound. P-O. Paw. Tha. ध को आ की मात्रा पौधा. पौधा. Next, N-O. K-A. N-O. No. K-A. Ka. No. Ka. Next is L-O. Law. K-E. Key. Loki. Bottle gourd. It's a vegetable. Loki. So kids, here we are done with our vowel signs. And last, while doing our swar, let us first recap all the swar. A, A, I, U, Ri. A, O, Au. O, औ तक हमने सारे स्वर किए. अब इसके आगे दो और वर्ण थे जिनके बारे में मैंने आपको कहा था कि we will do this later. अब उनकी बारी है. अब मैं आपको बताऊंगी वो वर्ण क्या हैं. तो उन वर्णों को हम अयोगवाह कहते हैं. उन वर्णों को हम अह को हम अयोगवाह कहते हैं. Yes, look here. This is अंग. अंग को हम अनुस्वार कहते हैं. अंग ध्वनि को हम अनुस्वार कहते हैं. Yes, एक और यह ध्वनि है जिसमें अ के ऊपर एक चांद बना हुआ है. चंद्र के साथ में बिंदी है. चंद्र के अंदर बिंदी लगी हुई है. कैन यू सी द सी शेप विद द डॉट ऑन अ? दिस इज अनुनासिक. दिस इज कॉल्ड अनुनासिक. फर्स्ट is a with one dot. This is anuswar. Next is a with one C shape and a dot in it. That is anunasik. And the third is, yes, this also we already have done. This is aha. What do we call it? Aha. Here a with two dots at the back. Two dots at the back. This is visarg. We call it visarg. Once again, speak with me. First is a with one dot. We call it anuswar. A with chandra with C shape and the dot in it. अ के ऊपर चांद की शेप के अंदर एक बिंदी है जिसे हम अनुनासिक कहते हैं. और थर्ड है हमारा अ के साथ में अ के पीछे बाद में दो डॉट हैं जिसे हम विसर्ग कहते हैं. और इन तीनों को हम these three all together are known as अयोगवाह. इनको हम अयोगवाह कहते हैं. अनुस्वार, अयोगवाह अब हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं. अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग. समझे? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग मिलकर इनको क्या कहते हैं? अयोगवाह. हाँ जी बच्चों, अब ये आया हमारा अनुस्वार और इसका चिन्ह है एक बिंदी. यह बिंदी व्यंजन के ऊपर लगती है. This dot comes on the consonant.
अनुस्वार का मतलब है when the sound is coming through our nose. Only from our nose the sound is coming. जो ध्वनि है वो हमारे नाक के रास्ते बाहर आ रही है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और उसके लिए हम क्या चिन्ह लगाते हैं? यह बिंदी का चिन्ह लगाते हैं जो कि व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। That comes above the consonant. This is the sign of anuswar. And the words are yes, this is the picture of a monkey. Look here how monkey in Hindi is known as bandar. Yes, so how to write bandar? Look here, b. This is a consonant. यह एक व्यंजन है। अब इस व्यंजन के ऊपर मैंने यहाँ पर एक बिंदी लगाई है, which is not touching anything. It is not touching either the line, not touching either the neither it is touching the vyanjan and nor it is touching the line. It is here above this straight line. ये जो व्यंजन की सीधी लाइन है, इसके ऊपर ये बिंदी थोड़ी दूरी पर लगती है। तो इसे हम इस बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं। और ये कैसे बोला जाता है? ब अंग, ब के ऊपर बिंदी का स्वर आ जाता है ब अंग। नाउ अब आप बोल रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि आपकी जो ध्वनि है वो आपके नाक के रास्ते से बाहर आ रही है। जो अंग की बिंदी का जो स्वर है वो नाक के रास्ते बाहर आ रहा है, तो इसीलिए हम इसका चिन्ह लगाते हैं एक बिंदी। बंदर, बंदर। नेक्स्ट है प। प के है आगे है त। त के ऊपर अनुस्वार लगा है तो ये क्या बन गया? तंग। आ रही है ध्वनि त से बाहर, सॉरी आ रही है ना आपकी ध्वनि न से बाहर, नाक से बाहर। सो प तंग, पतंग। Kite. Yes, next is our national flag. What do we call it? झन। Look here. झ के ऊपर बिंदी है और झ के किस भाग के ऊपर बिंदी लगाई है हमने? Yes, ये सीधी जो रेखा है, झ की जो सीधी रेखा है उसके ऊपर बिंदी है। वैसे ही त की जो सीधी रेखा है उसके ऊपर है, ब की भी सीधी रेखा है उसके ऊपर बिंदी है। ये बात का ध्यान रखिएगा कि अनुस्वार व्यंजन के किस भाग के ऊपर लगता है? व्यंजन की सीधी लाइन के ऊपर लगता है, और ना ही यह व्यंजन को टच करता है और ना ही किसी लाइन को टच करता है। सो झ अंग झन डा, ध्वनि हमारे नाक के रास्ते से बाहर आ रही है। झंडा, झंडा मीन्स फ्लैग। इसे कहते हैं हम अनुस्वार। अब हम आगे पढ़ेंगे अनुनासिक। अनुनासिक मतलब जो हमारी ध्वनि है नाक से तो बाहर आ रही है, साथ ही में वो हमारे गले से होते हुए हमारे मुंह से भी बाहर आ रही है। मतलब गले से जब वो साउंड निकलती है, ध्वनि निकलती है, तो वो हमारे नाक और मुंह दोनों से बाहर आती है, तो इसे हम कहते हैं अनुनासिक। हाँ जी, यह है अनुनासिक। के ऊपर चंद्र विद बिंदु, चांद विद बिंदु, अ सी शेप विद बिंदु, यह होता है अनुनासिक। और इसको, हाँ जी, हम इसको स्वतंत्र रूप में भी लिख सकते हैं और इसका चिन्ह है यह, अ सी शेप विद अ डॉट इन इट, चंद्र बिंदु। इसे हम कहते हैं चंद्र बिंदु। हिंदी में हम इसे कहते हैं चंद्र बिंदु, और इसे कहते हैं चंद्र बिंदु को हम कहते हैं अनुनासिक। मतलब अनुनासिक मतलब कि जब गले से ध्वनि बाहर आए तो वह गले से होती हुई नाक और मुंह दोनों से ही बाहर आती है। और इसके शब्द हैं यस, फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ कैमल। कैमल मीन्स ऊंट। आप देख सकते हैं बड़ा ऊ लिखा हुआ है मैंने।
बड़े ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया है। जो चंद्र बिंदु है वो ऊ के ऊपर आया है, लेकिन ऊ को कहीं पर टच नहीं कर रहा। थोड़ी दूरी पर जो हमारी शिरोरेखा आती है उससे ऊंचाई पर लिखा जाता है। तो ऊ, तो अब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे कैसे, ऊ। अब आप जब ऊ बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि जो आपकी ध्वनि है, जो अनुनासिक ध्वनि है, वो आपके नाक और मुंह दोनों से बाहर आ रही है। तो वो बाहर आते हुए ऊ के साथ जुड़ रही है। तो वो क्या बन रहा है, ऊंट, ऊंट। अगला है द को आ की मात्रा, दा। अब जो आ की मात्रा आई है, आ की मात्रा के ऊपर हम यह अनुनासिक ध्वनि लिख रहे हैं। तो दांत, दांत। च आ, चा के ऊपर जो हमारे आ की मात्रा है उसके ऊपर अनुनासिक ध्वनि लिखी है हमने, तो ये बन गया चांद, चांद। बच्चों, अनुनासिक ध्वनि संस्कृत भाषा की ध्वनि है, इसीलिए हम इन्हें हिंदी भाषा में ज्यादा लिखते नहीं हैं। और यह ध्वनि काफी शब्दों, जहां पर स्वर का उच्चारण, जहां पर ध्वनि का उच्चारण हमारे नाक और मुंह से होता है, वहां पर हम इसको लिखते हैं। परंतु ये याद रखिए, यह आ की मात्रा पर आता है, यह उन मात्राओं पर आता है जो कि हमारी शिरोरेखा से नीचे नीचे रहती है। जब मात्रा शिरोरेखा के ऊपर चली जाती है, जैसे ए, ए, ओ, औ, यह मात्राएं ऊपर जाती है, हमारी शिरोरेखा यानी जो हिंदी के जो हम लाइन लगाते हैं उससे ऊपर चली जाती है, तो वहां पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। वहां पर हम चंद्र बिंदु की जगह हम सिर्फ बिंदु का प्रयोग करते हैं, यानी अनुनासिक की जगह हम सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। समझे बच्चों? इसीलिए हम अनुनासिक ध्वनि को ज्यादा प्रयोग में नहीं लाते हैं। यह संस्कृत भाषा की ध्वनि है। अब आगे आता है विसर्ग। विसर्ग में अ के आगे हमने 2 बिंदु लगाए हैं। यह अह की साउंड देता है, अह। इसकी जो वॉवल साइन है वो है यह 2 बिंदी। 2 बिंदी ये कहां पर आती है? यह 2 बिंदियां व्यंजन के बाद में लगाई जाती हैं। These 2 signs comes after consonants. Okay? And the words are, yes. Can you see this picture? The lady is wishing you namaste. So we call it namah. Aha. Can you see now? Aha sound is coming. Namah. Namah. Maha. aha का साउंड आ रहा है, म के आगे हमने aha साउंड के लिए 2 बिंदी लगा दी हैं, तो इट विल बिकम नमः, नमः। नेक्स्ट इज द सीन इज ऑफ मॉर्निंग। वी कॉल इट प्रातः, aha साउंड इट इज प्रातः, प्रातः, नमः, प्रातः, sound is coming at the last. Now next is the picture of again that you are reading the lesson again and again when we are doing some work again and again. At that time we call it punah, punah, pu, प को छोटा ऊ की मात्रा, पु, नह, पुनः, नह। बच्चों समझे? तो हमने इन 3 अयोगवाद ध्वनियों के बारे में पढ़ा है। अयोगवाद ध्वनियां है अनुस्वार, अनुनासिक और यह है विसर्ग। अनुस्वार के लिए हम एक बिंदी लगाते हैं। अनुनासिक जो कि एक संस्कृत भाषा की ध्वनि है, उसके लिए हम चंद्र बिंदु के साथ बिंदी लगाते हैं। और यह ध्वनि यानी अनुनासिक का जो चिन्ह है वो हर मात्रा के ऊपर नहीं आता है, वो सिर्फ वो ए, ओ, औ मात्रा पर नहीं आता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एक मात्रा लगी हुई है।
तो उसके साथ हम चंद्र बिंदु लगाने की बजाय हम सिर्फ अनुस्वार लगा देते हैं, दैट मीन्स एक बिंदी लगा देते हैं। और आगे आता है अह, जो कि हमारे शब्द में अह का साउंड देता है। नमः, प्रातः, पुनः। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह सब मात्राएं समझ में आई होंगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू यू ऑल।